Okay, so now see, what happens is in the critical reasoning हमें क्या करना होता है? Basically we have given some questions over the statements and arguments, statements and inference, statements and conclusions, statements and assumptions. Like these four types of questions are mostly comes in the exams, and specifically talking about the MBA CET, these four types of questions are most important questions. And so here we are going to solve some advanced level questions, advanced level of critical reasoning questions. These are the some variety जो क्वेश्चंस आते हैं, तो इन क्वेश्चंस को हम लोग आज गो थ्रू करने वाले हैं। थोड़ा सा अप्रोच समझेंगे, थोड़ी सी टेक्निक्स को समझेंगे, कैसे टू द पॉइंट कैसे हमें आंसर्स को फाइंड आउट करना है, दैट वी विल गोना सी। एंड नाउ हियर इंपॉर्टेंट इज आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छा होना चाहिए, बेसिक क्लियरेंस होनी चाहिए, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, देन यू वुड बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। ओके, सो मूविंग अहेड टू द पॉइंट, statements and arguments. Basically what statements and arguments क्या होती है? Can anyone tell me what exactly the argument is? What exactly the argument is? According to the critical reasoning, what exactly the argument is? समथिंग अबाउट कि हम किसी भी बात पर कोई एक डिबेट बोल दे, एक बात बोल दे, एक आर्ग्यू दे दे, एक आर्ग्यूमेंट दे दे कि ये ऐसा नहीं, ये ऐसा हो सकता है, टू डिफेंड अ स्टेटमेंट और समथिंग समथिंग टू फाइट विद दैट, कुछ फाइट करना उसके रिगार्डिंग, कुछ ना कुछ हमें जो हमारा जो ओपिनियन है उस ओपिनियन को देना, वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, दैट्स अनदर काइंड ऑफ थिंग। तो ये तो अलग बात हो गई कि वो राइट है कि रॉन्ग है, बट दैट्स एन आर्ग्यूमेंट व्हिच कुड वीकन द स्टेटमेंट, व्हिच कुड स्ट्रेंथन द स्टेटमेंट, व्हाटएवर इट इज, कुछ भी हो सकता है कि हम जिस स्टेटमेंट को सुन रहे हैं उस स्टेटमेंट्स को हम लोग जो आंसर करेंगे, जो बात बोलेंगे उसके ऊपर उस स्टेटमेंट्स की वीकनिंग एंड उसका स्ट्रेंथन इज डिपेंड। ओके, सो नाउ मूविंग टू द टाइप ऑफ क्वेश्चंस हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैसे क्वेश्चंस आते हैं एंड व्हाट आर द कंसेप्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स एंड आर्गुमेंट्स, सो हियर इज द गिवन। Now, statement and argument concept क्या है? Basic concept is in this type of questions, a statement concerned with an issue is given. कोई भी एक issue होगा, कोई भी एक statement दिया होगा, and followed by certain arguments in favor of. Favor of मैंने पहले ही बोला, कुछ arguments ऐसी होती है जो statements को strengthen कर देती है, and कुछ arguments ऐसी होती है जो statement को weaken कर देती है. That's are opposing arguments. जो oppose करती है वो क्या होती है? Basically these are the like this कि ये अपोज करने वाली है, तो अगेंस्ट है। ओके, that statement. So you have to identify a logically correct argument. Now, logically correct argument depends on the question. If the question asking which argument is a strengthening, and which argument is a like which statement is a strengthening the argument, which statement is a weakening the argument, that depends on the question. So according to that, you have to logically find out the correct argument. Then generally, both the arguments are contrary to each other and refer to the negative results of the action as mentioned in the statement is you. अब यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट आपको दिया है जनरली वो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, एंड अपॉन दैट हमें स्टेटमेंट्स और आर्ग्यूमेंट्स दी होती है, वी हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर्स। ओके, सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। Now here there are the some strong arguments, there are the some weak arguments. What exactly the strong argument? Strong argument hota kya hai? An argument is called strong if it touches the practical and real aspects of the situation as described in these statements. Now basically kya bolna hai and what they want to explain you, kya batana chahte hai, is that कि जितना भी आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है, जितना भी आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है, उस स्टेटमेंट को पूरी तरह कंप्लीटली कवरिंग द होल स्टेटमेंट, योर आर्ग्यूमेंट शुड बी, आपका आर्ग्यूमेंट पूरा कवर करना चाहिए स्टेटमेंट को, and that's only the your right argument of the situation as described in the statement. देखो now यहां पर सिर्फ हाइपोथेटिकल चीजें काम नहीं आती या फिर अपने ओपिनियन काम नहीं आते, that should be a practical sense and that should be related to real aspect of the statement. Now it is backed up by reasons and fact related to the situation. Now ये reasons तो ठीक है, वो हमें find out करने पड़ते हैं, but facts would be इन दी सिचुएशनल क्वेश्चन। लाइक स्टेटमेंट में अगर कोई फैक्ट है, स्टेटमेंट में रिलेटेबल फैक्ट अगर कोई है, तो वो रिलेटेबल फैक्ट को हमें समझना होगा, अकॉर्डिंगली हमें हमारे इस आर्ग्यूमेंट को समझना होगा एंड अकॉर्डिंगली आंसर करना होगा, दैट वुड बी द लॉजिकली करेक्ट। Now this would be the strong argument. Now what exactly the weak argument is?
See, an argument is called a weak if it is not directly. See, here they are talking about it touches, means that is directly connected to. And then here it is saying it is not directly related to the given statement. मतलब क्या होता है, देखो दो तरीके की आर्ग्यूमेंट हो सकती है. समवेयर इफ आई से कि मैंने एक आर्ग्यूमेंट दे दिया जो कि कंप्लीटली रिलेटेबल है विद द फैक्ट, विद द रीजंस, विद द पॉइंट्स गिवन इन द स्टेटमेंट, दैट मींस दैट इज अ स्ट्रॉन्ग, जो है ना वो स्ट्रेंथन कर रही है आर्ग्यूमेंट को. नाउ इफ आई से कि मैंने सिर्फ एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जो कि उसके रिलेटेड है ही नहीं, उसका कोई उससे कोई मीनिंग ही बनता नहीं, कुछ मतलब ही नहीं, कुछ रिलेशन ही नहीं है. बट समझो ये तो हो गया एक सिनारियो कि जो नॉट रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, समथिंग लाइक अ विच इज नॉट रिलेटेड इंफॉर्मेशन, एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि रिलेटेबल नहीं होगी. समझो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि नॉट रिलेटेड है. नाउ इन दिस काइंड ऑफ थिंग, ये तो हो गया वीकन करने का तरीका. This is a one type of weakening. Then next is somewhere the statement would be completely opposite to the given argument or completely argument to the opposite to the given statement. Now in that case also जो स्टेटमेंट है वो वीक हो जाता है. इन दैट केस आल्सो वो स्टेटमेंट वीक होता है. नाउ देखो, एंड इट इज नॉट एड्रेस. नॉट एड्रेस का मतलब क्या, इट इज कंप्लीटली अपोजिट टू द गिवन स्टेटमेंट. अपोजिट टू द गिवन स्टेटमेंट का मतलब है जो दिया हुआ है उसके अपोजिट बात की, सो दैट कंप्लीटली व्हाट, दैट इज वीकनिंग द आर्गुमेंट. A weak argument is of a minor importance or maybe related to the trivial aspect of these statements. मतलब उससे ज्यादा कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता, ना उससे कुछ ज्यादा डिफरेंट कुछ फर्क पड़ने वाला है, कुछ ज्यादा कुछ उसमें चेंजेस होने वाले हैं स्टेटमेंट्स को, कोई ज्यादा उसको इंप्रोवाइजेशन मिलने वाला है, कुछ वीकनिंग होने, ऐसा कुछ नहीं होगा. इट्स जस्ट ट्रिवियल नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन. इट्स जस्ट like a minor kind of information which is not important. Okay, so that type of argument would be the weak argument. Okay, सो नाउ दिस आर द बेसिक थिंग्स जो मैंने एक्सप्लेन की. ये तो बेसिक थिंग है, जो बेसिक थिंग हम समझते हैं. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन हियर, सी यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसे होता है. पहले तो आपको एक स्टेटमेंट दिया होता है एंड देन यू हैव दे हैव गिवन यू द आर्ग्यूमेंट्स. उनके पास आर्ग्यूमेंट्स दी होती है, लाइक 4 to 5 आर्ग्यूमेंट्स होती है. अ स्टेटमेंट इज एन इंफॉर्मेशन ऑफ एक्शन और अ फैक्ट रिलेटेड एनी जनरल सब्जेक्ट. कोई भी एक जनरल सब्जेक्ट हो सकता है, प्रैक्टिकल रियल सब्जेक्ट हो सकता है. ऑन दैट बेसिस दे हैव गिवन यू द स्टेटमेंट. नाउ अकॉर्डिंगली उन्होंने आपको एक आर्ग्यूमेंट भी दिया होगा, 4 आर्ग्यूमेंट्स दिए होंगे, 5 आर्ग्यूमेंट्स होंगे. एन आर्ग्यूमेंट इज अ फैक्ट दैट आर बीइंग गिवन बाय अ पर्सन टू सपोर्ट एंड अपोज द स्टेटमेंट. इन सिंपल लैंग्वेज, आर्ग्यूमेंट इज अ पॉइंट ऑफ व्यू. अब ये आर्ग्यूमेंट होता तो होता क्या है, इट्स एन अ सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू. ये एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, बट दैट्स अ गिवन इन द क्वेश्चन ओनली. तो क्वेश्चन में दिया होगा, हमें सिर्फ उस पॉइंट ऑफ व्यू को समझना है अपने अकॉर्डिंगली एंड लॉजिकली परफेक्ट जो होगा उसे हमें आंसर करना है. बट दैट शुड बी प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिकली करेक्ट, रियलम नेचर में होना चाहिए. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू चेक द फोर्स फुलनेस ऑफ द गिवन आर्ग्यूमेंट, that is given argument such as if they are a weak or a strong. Now basic है, हमें जो आर्ग्यूमेंट मिलेगा उस आर्ग्यूमेंट को हमें लॉजिकली समझना होगा. कमिंग टू द क्वेश्चन, हम क्वेश्चंस को समझते हैं, सो वी कैन बी लाइक थोड़ा सा हमें और क्लियरिटी होगा कि हमें करना क्या है एंड हाउ वी आर गोना अप्रोच द क्वेश्चन, हाउ वी आर गोना अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द क्वेश्चन. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, सी हियर इज अ क्वेश्चन. नाउ व्हाट हैपनिंग इन दिस क्वेश्चन, यहाँ पे एक पूरा आपको पैराग्राफ दिया गया है, कंप्लीट एक पैराग्राफ लिख के दिया, दैट इज ऑफ समवॉट अराउंड 5 to 6 लाइंस. ओके, नाउ व्हाट यू विल डू, you will just read the paragraph and you will try to fill up this, just fill up this, because this is only the argument. ये एक argument दिया हुआ है, ये एक argument दिया हुआ है and you have to fill that. मतलब जो पार्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट जो अभी फिल करना है वो आर्ग्यूमेंट आपको यहां पे कंप्लीट करना होगा. दे गिवन यहाँ पे इतना, यहां तक आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है. नाउ दे हैव गिवन अ 4 ऑप्शंस हियर. व्हाट यू विल डू, यू विल जस्ट फिल अप दैट आर्ग्यूमेंट, दैट पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट, दैट पार्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट व्हिच कंप्लीट्स दी दिस होल आर्ग्यूमेंट. ये कंप्लीट, इस आर्ग्यूमेंट को कंप्लीट करने वाला एक स्टेटमेंट आपको चॉइस करना है एंड यू हैव टू फिल अप हियर, बट दैट बेस्ड ऑन द रियलम ऑफ द गिवन स्टेटमेंट. नाउ start reading it, take it 2 minutes to understand and 30 seconds to answer. Just try to read and understand. गलत होता है चलेगा, कोई इशू नहीं है, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें कैसे करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू रीड, थोड़ा मिस्टेक करो, थोड़ा सा समझ में आएगा, देन वी विल एक्सप्लेन कि इसको कैसे अप्रोच करना है, कैसे अंडरस्टैंड करना है. ओके, गो फॉर इट. आई वांट एवरीवन टू पार्टिसिपेट हियर. थोड़ा भी नहीं पता तो चलेगा, बट एटलीस्ट पार्टिसिपेट करो जिससे कि आपको समझ में आवे कि क्या करना है.
Done with the reading? Guys, try to understand and try to answer. Okay. 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 Good one. Most of the people are giving answer A. Okay. Guys, see what exactly the paragraph is talking about. क्या क्या information है? तो information is about philosophers talk about what कि nations. What exactly the nations? Nations होते क्या है? उसके बारे में information दिया है. Nations are not literally person. वो कोई literal person नहीं है, ये बताया गया. Now, after saying they are not a literal person, they are talking about what कि they have a no thoughts. क्यों वो person नहीं है? Because they have no thoughts, literally speaking, and literally speaking they perform no actions. मतलब एक individual person जो होता है वो at least thoughts के साथ होता है, feelings के साथ होता है, natural human being. बट यहां पर nation जो है वो कोई literal person नहीं है, right? This is kind of a law of actor, international law of actor. So thus they have no moral rights or responsibilities. उनकी कोई moral rights नहीं होती, responsibilities नहीं होती. We are just talking about this nations term, हाँ. Accordingly जो दिया हुआ है उस statements को हम लोग discuss कर रहे हैं. But no nation can survive unless many of its citizens attribute such rights and responsibilities to it. मतलब यहाँ पे एक चीज बताई गई है कि कोई भी नेशन जो है वो सरवाइव नहीं कर सकता. कब तक नहीं सरवाइव कर सकता? जब तक मैनी ऑफ इट्स सिटीजन्स, उसके जो सिटीजन्स है ना, उनके जो खुद की राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स द नेशन, वो उनको ना समझ में आए. एट्रीब्यूट करना मतलब वो खुद से समझ ले और उसको कंप्लीट करे, उसको उससे अबाइड रहे, उन राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से अबाइड रहे. फॉर नथिंग एल्स कुड प्रॉम्प्ट पीपल टू मेक सैक्रिफाइसेस नेशनल सिटीजनशिप डिमांड्स. मतलब कोई भी ऐसी चीज, पर्सनल ऐसी चीज नहीं हो सकती, कोई ऐसा थिंग नहीं हो सकता जिसकी वजह से वो जो है खुद जाकर नेशंस की सिटीजनशिप जो चाहती है वो करे. मतलब हम इस देश, हम इस कंट्री के हैं, हम इस कंट्री में सिटीजन हैं, तो हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. वी हैव टू गिव सम सैक्रिफाइसेस. दैट डिपेंड्स ऑन देयर मेंटालिटी, दैट डिपेंड्स ऑन देयर थॉट्स, दैट डिपेंड्स ऑन देयर बिलीव्स. इज इट? तो अगर उनकी जो बिलीव्स है वो बिलीव्स जब तक चेंज नहीं होगी, हाउ दे आर गोना अबाइड देयर, हाउ दे आर गोना टू बी अबाइड विद देयर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स द नेशन? नहीं रहेंगे. इट्स अ सिंपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैराग्राफ. नाउ व्हाट हैपेंस इज इन द ऑप्शंस दे हैव गिवन सम स्टेटमेंट्स. हमें क्या करना है? जो हमने अभी अभी इसका मीनिंग समझा, जो हमने पैराग्राफ को समझा ना, हियर कम्स द थिंग कि हमें पैराग्राफ तो पहले रीड करने के बाद उसका मीनिंग समझ में आना चाहिए. दूसरी चीज, एग्जैक्टली प्रैक्टिकल रिलेशंस में, प्रैक्टिकल रियलम में हमें उसको समझना होगा कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस. अगर इसके बाद मैं कंप्लीशन की बात करता हूं, इसके बाद अगर मुझे कुछ बोलना हो, जनरल लेमैन पर्सन व्हाट विल से, क्या बोलेगा? अगर उसको इसके बारे में नॉलेज है, व्हाट ही विल से, एक जनरल लेमैन अंडरस्टैंडिंग क्या होगी वो हमें समझना होगा. ना कमिंग टू द पॉइंट, पहला तो क्या बोला देखो, ऑप्शन ए सेज कि नॉट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट. कि नॉट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट मतलब किसके बारे में बोलना है? अ नेशन. तो पहले तो यहां पे ये समझ लो कि हम लोग नेशन के बारे में बोल रहे हैं. अ नेशन कैन नॉट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट अनलेस, अनलेस के बाद उसने रीजन बताया, समथिंग अदर देन द फॉल्स बिलीफ, अदर देन द फॉल्स बिलीफ. मतलब यहां पे बोलना है फॉल्स बिलीफ के अलावा, अदर देन द फॉल्स बिलीफ. चलो, दैट दी मतलब इनको छोड़ के, एक्सेप्ट दिस, एक्सेप्ट फॉल्स बिलीफ, ऐसे समझ लो, इजी हो जाएगा थोड़ा सा. दैट द नेशन हैज, that the nation has moral rights, moral rights motivates its citizen to make sacrifices. मतलब इसको ये बोलना है कि नेशन को कोई मॉरल राइट्स होने चाहिए और वही जो मॉरल राइट्स है सिटीजन्स को मोटिवेट करे टू मेक अ सैक्रिफाइसेस. बट पहली चीज तो ये नॉनसेंस हो गया, क्योंकि स्टार्टिंग में ही बोल दिया है कि दे आर नॉट लिटरली पर्सन, वो पर्सन नहीं है. दे हैव नो थॉट्स और फीलिंग्स, उनके पास कोई फीलिंग्स एंड थॉट्स नहीं है. एंड लिटरली स्पीकिंग, दे
परफॉर्म्स नो एक्शंस, तो नेशन कोई बात नहीं करता, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करता, कुछ भी नहीं है, उसको थॉट्स नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, हाउ दे कुड हैव दैट मॉरल राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज? तो पहली चीज, ये स्टेटमेंट ही गलत है, ये पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट ही गलत है, एंड दैट्स द रीजन ऑप्शन ए गेट्स एलिमिनेटेड. Now, option B says, again, we will be like this: a nation cannot survive unless many of its citizens have some beliefs that are literally false. मतलब इसको ये बोलना है कि cannot survive unless many of its citizens have some beliefs that are literally false. जब अभी कैसा होगा ना कि देखो, ये जो बिलीव्स है, लोगों के जो बिलीव्स है, वो लिटरली फॉल्स, अगर वो फॉल्स होते हैं तो ये जो जो नेशन है वो सरवाइव ही नहीं कर पाएगा. दैट्स नॉट पॉसिबल. उनके जो बिलीव्स है वो राइट होने चाहिए, राइट? तो वो जो बिलीफ अगर राइट होंगे तभी तो वो सरवाइव करेगा, एंड दैट वुड बी द somewhere common sense and somewhere a logical statement. Now, coming to the next point, can never be a target of moral praise or a blame. Now, नेशन के लिए कोई भी चीज मॉरल प्रेज एंड ब्लेम कैसे हो सकती है अगर वो नेशन जो है वो लिटरल पर्सन ही नहीं है. सो हाउ वी कैन से दैट कि नेशन हैव सम मॉरल प्रेज एंड ब्लेम, उनके ऊपर कुछ मॉरल प्रेज एंड ब्लेम कर दिए जाए? हम कभी किसी नेशन को इस तरीके से प्रेज या ब्लेम करते हैं कि ये नेशन की वजह से हुआ? नहीं. वी ऑलवेज थिंग्स लाइक दैट कि जो लीडर उनको संभाल रहे, उस नेशन को संभाल रहे, हम उनको ब्लेम करते हैं. ऑलवेज हम ब्लेम क्या किसको करते हैं? उस पॉलिटिकल पार्टी को ब्लेम करते हैं. सो बेसिकली ये भी यहाँ पे एलिमिनेट होता है, because there is no existence of any individuality, any personality. Next, is not worth the sacrifice that its citizens make of its behalf. मतलब यहाँ पे क्या बोलना है? a nation अभी nation के आगे a nation is not worth the sacrifice that citizens make of it on behalf. ये तो completely opposite है, तो it's a completely incorrect statement. कुछ मतलब मीनिंग ही नहीं बनता. स्टेटमेंट्स, ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इस आर्ग्यूमेंट से प्रॉम्प्ट ही नहीं है, इस आर्ग्यूमेंट से मैच ही नहीं करता. इट्स कंप्लीटली डिफरेंट देन, इफ डिफरेंट देन दिस आर्ग्यूमेंट. तो इसको भी एलिमिनेट करो. नाउ व्हाट रिमेन्स विद यू? ऑप्शन बी, एंड दैट वुड बी योर करेक्ट आंसर. Guys, have you understood the process? I know that there would be some like थोड़ा सा इधर उधर समझ में नहीं आया होगा, मे बी स्टार्टिंग ऑफ द फेज है तो थोड़ा सा ऊपर से जाएगा, बट आई नो कि प्रोसेस तो समझ में आया होगा, किस तरीके से हमें वर्क करना है, किस तरीके से हमें अप्रोच करना है. हैव यू अंडरस्टैंड दैट? यस और नो? गाइज डू पार्टिसिपेट एंड गाइज बी एक्टिव, बिकॉज एक्टिव रहोगे तो और मजा आएगा सेशन में. अल्दो सेशन वुड बी अ डिफिकल्ट, कुछ भी होने दो, सेशन डिफिकल्ट होने दो, कुछ भी होने दो, बट बी एक्टिव. अगर एक्टिव रहोगे तो उतना ही सेशन लेने में और आपको भी समझने में मजा आएगा. जस्ट बी लाइक टॉकेटिव रहो, थोड़ा सा बोलो, समझो, क्वेश्चंस करो, बात करो. दैट वुड बी अ मतलब मजा देगा वो, सेशन को बड़ा इंटरेस्टिंग बनाता है इसीलिए. ओके, चलो मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. ऐसे ही आपको थिंकिंग करना है, ऐसे ही आपको समझना है. दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन. सो मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, आपका जो है प्रोसेस क्या होना चाहिए. यू विल रीड द पैराग्राफ, यू विल अंडरस्टैंड द पैराग्राफ, देन यू विल मैच विद योर ओपिनियन. आपका जो एक पर्सनल ओपिनियन फॉर्म कर लो जो प्रैक्टिकल रीजनिंग पे बेस्ड हो, एंड देन आफ्टरवर्ड यू आर गोइंग टू बी फाइंड आउट द राइट ऑप्शंस, राइट आंसर्स. ओके, चलो मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन. Also, here would be, you will take around 2 minutes to read and 30 seconds to answer. Okay, take a 2 minutes to read and then 30 seconds to answer. Chalo, start.
ओके, आंसर तो आए हैं, वेरी गुड, चलो अच्छी बात है। और बहुत सारे लोग राइट आंसर कर रहे हैं, दैट इज वेरी गुड थिंग, परफेक्ट गाइस, बहुत सारे लोगों ने राइट आंसर किया है। ठीक है, ओके, 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 गुड। So now see what happening here and how to like इसको कैसे अप्रोच करना है, there will be the another thing called like हम यहाँ पे ना एक थोड़ा सा एलिमिनेशन टेक्निक भी यूज कर सकते हैं somehow, हम जैसे इंग्लिश के आरसीज में करते हैं तो वो यहाँ पे भी यूज किया जा सकता है, बट दैट वुड बी थोड़ा सा रिस्की। सो आई वुड से कि वो थोड़ा सा अप्लीकेबल करते वक्त थोड़ी सी आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, अल्दो मैं वो आपको बताऊंगा कैसे करना है, बट थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग रखो तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज इट वुड बी थोड़ा सा डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द राइट आंसर। अब देखो यहां पे कैसे करोगे, पहले तो हमें पैराग्राफ को रीड करना है। पैराग्राफ दिया क्या है, इट इज जनरली अग्रीड बाय साइंटिस्ट दैट ए नेचुरली ऑकरिंग विटामिन फाउंड, अब यहां पे बात किसके बारे में हो रही है, विटामिन के बारे में, फाउंड इन प्लांट, जो विटामिन प्लांट में मिलते हैं उसके बारे में डिस्कशन हो रहा है। एंड हेल्दी एंड ऑर्गेनिक डिशेज आर मोर रेडिली एब्जॉर्ब बाय बॉडी, मतलब ये बॉडी में ज्यादा जल्दी ऑब्जॉर्व हो जाते हैं, तो दैट इज मोर बेनिफिशियल and more effective once absorbed than synthesized vitamin। synthesized vitamin मतलब जो पिल्स से मिलती है ना, हमें हम विटामिन की पिल्स इनकल्ट करते हैं तो उसके हमें जो मिलती है वो होती है सिंथेसाइज्ड विटामिन। अब वो बनी बनाई विटामिन है जो बाहर निकाल कर एक्सट्रैक्ट करके उसको पिल्स में यूज कर लिया एंड सम केमिकल्स यूज करके उसको पिल्स में आपको दे दिया, ये प्रोसेस होता है उसका सिंथेसाइज्ड विटामिन का। तो यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है जो नेचुरल हेल्दी विटामिन होती है जो कि प्लांट से मिलती है, ऑर्गेनिक विटामिन होती है, एंड दूसरे साइड पर सिंथेसाइज्ड विटामिन के बारे में डिस्कशन हो रहा है कि जो सिंथेसाइज विटामिन है उन वो जो होती है वो थोड़ी सी लेस इफेक्टिव होती है देन दी ऑर्गेनिक हेल्दी विटामिन। such pills are useless, they are talking such pills are useless therefore and should be avoided as nothing but a waste of money। मतलब इन पिल्स को क्या करना चाहिए, should be avoided, इनको अवॉइड करना चाहिए। ओके, दैट इज ओके। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, अब थोड़ा सा यहां पे समझने वाली बात है, कैसे। पहली चीज ऑप्शन ए में बोला है विटामिन पिल्स कैन कॉस्ट, पहले अच्छा पहले तो क्वेश्चन को देख लो, एंड द आर्ग्यूमेंट अबाउ वुड बी मोस्ट ड्रामेटिकली अंडरमाइन। ये अंडरमाइन क्या होता है, ये अंडरमाइन का मतलब क्या निकलेगा गाइस, जरा समझाना मुझे, जरा आंसर करो लिटरल सेंस में अंडरमाइन का मतलब क्या हुआ, वन वर्ड और समथिंग लाइक वन फ्रेज, व्हाट वुड बी द अंडरमाइन, वीकन, और बाकी के लोग भी बोलो आंसर, व्हाट वुड बी द अंडरमाइन, अंडरमाइन का मतलब क्या होगा, अपोज, वेरी गुड, मीनिंग इनसाइड द पैरा, undermined, okay, dramatically undermined, against, okay, and contradictory, very good, and okay, okay, चलो, गुड 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 गुड। तो समथिंग लाइक अ वीकन करना, और जैसे अद्वैत ने भी बोला कि कॉन्ट्राडिक्ट करना, कॉन्ट्राडिक्ट करना, एंड समवेयर अगेंस्ट बात करना, ऑल दीज आर लिटरल मीनिंग ऑफ द अंडरमाइन। ठीक है, मैंने जानबूझ के इतने सारे मीनिंग्स बता दिए क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो ऐसे ही घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वर्ड्स को चेंज, वर्ड प्ले कर लिया तो आप कंफ्यूज, ये नहीं होना चाहिए। अगर वर्ड प्ले भी होता है सो यू शुड नो दी सिनोनिम्स ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड, सो यू कुड अंडरस्टैंड कि इसका मीनिंग क्या है। ओके, दैट वुड बी द स्ट्रेटेजी, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट वुड बी द स्ट्रेटेजी कि हमें क्वेश्चन को डिकोड करना आना चाहिए, क्वेश्चन डिकोडिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, विटामिन पिल्स कैन कॉस्ट एनीवेयर फ्रॉम अ फ्रैक्शन ऑफ अ डॉलर। ओके, यहाँ पे बात की जा रही है costing की, can cost anywhere from a fraction of a dollar for an inexpensive generic brand to several tens of डॉलर्स पर डे फॉर कस्टम प्लान्ड सप्लीमेंट रेजिमेंट्स। यहाँ पे ये कॉस्टिंग की बात की जा रही है, ब्रांड्स की बात की जा रही है, ये सब तो हमारी इंफॉर्मेशन में या फिर हमारे स्टेटमेंट्स में तो दिया ही नहीं था। सो दिस इज कंप्लीटली इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन टू द टॉपिक। पहले तो गिवन इंफॉर्मेशन से ये इररिलेवेंट है, हम इससे कुछ भी मतलब कुछ भी ना वीक कर पाएंगे ना कुछ स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे, इसका कोई रिलेशन ही नहीं बनता, इट्स कंप्लीटली इन इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन गिवन हियर। कम टू द ऑप्शन बी, न्यूट्रिशनिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट
typically prescribed combined courses of healthy eating and vitamin supplements. So now nutrition is typically prescribed what? Combined courses of healthy eating and vitamin supplements. Now here you can say that कि यहाँ पे न्यूट्रिशन की बात की जा रही है. न्यूट्रिशन क्या बोलते हैं कि बाबा आप लोग जो है ना कोर्सेज ऑफ हेल्दी ईटिंग ले लो और उसके साथ विटामिन सप्लीमेंट्स लेना ना. इट सिम्स लाइक कि ये जो स्टेटमेंट्स है ना ये विटामिन पिल्स को ना थोड़ा सा सपोर्ट कर रहा है. दैट मींस वीकनिंग इट इज वीकनिंग दी गिवन आर्ग्यूमेंट. क्यों? क्योंकि पहले तो ये इंफॉर्मेशन जो है ये पिल्स के बारे में बात कर रहा है कि ये यूजलेस है, ये अवॉइड करो, इनको वेस्ट ऑफ मनी है, इसको यूज करने का मतलब ही नहीं बनता. बट ये तो उसके सपोर्ट में बात कर रहा है. दैट मींस कहीं ना कहीं ये वीकन करने की कोशिश तो कर रहा है. सो दिस वुड बी दी वन ऑप्शन वी कैन कंसीडर फॉर एज ऑफ नाउ. इसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं. बट देयर इज अ थिंग, क्या इससे भी कोई स्ट्रॉन्ग ऐसा आर्ग्यूमेंट है जो इसको और अच्छे से वीक कर पाए? चलो देखते हैं. कम टू द ऑप्शन सी. लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स and cold water fish contained highest concentration of vitamins among the food items. बट यहां पे तो हम अभी फिर ये तो ऐसा हो जाएगा ना, ये तो ऐसा हो जाएगा कि हम अपने ही ऑर्गेनिक मतलब ऑर्गेनिक विटामिन को ही कंपैरिजन में डाल रहे हैं, ऑर्गेनिक विटामिन में ही कंपैरिजन कर रहे हैं. सो दैट शुड नॉट बी अ परफेक्ट थिंग बिकॉज यहां पे ऑर्गेनिक में ही कंपैरिजन नहीं हो रहा है. दे आर कंपेयरिंग ऑर्गेनिक एंड सिंथेसाइज. तो यहां पे तो बेसिकली स्टेटमेंट में ऑर्गेनिक में ही कंपैरिजन कर रहे हैं, इसका तो कोई रिलेशन नहीं बनता बिकॉज कंपैरिजन ही आउटसाइड द स्कोप है. चलो ऑप्शन डी पे आ जाओ. ऑप्शन डी सेज द वॉल्यूम ऑफ अ फूड रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन क्वांटिटीज ऑफ विटामिन. मतलब क्या? वॉल्यूम ऑफ द फूड रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन क्वांटिटीज ऑफ विटामिन. जो ऑर्गेनिक फूड होता है ना उसकी जो क्वांटिटी होती है विटामिन, जो विटामिन लेने हैं उसके लिए जो ऑर्गेनिक फूड की जो क्वांटिटी होती है जो हमें कंज्यूम करनी होती है कंपेरेबल टू व्हाट इज कंटेंट comparable to what is contained in a vitamin pills. What is a content in a vitamin pills is effectively impossible to consume on daily basis. अब यहाँ पे सिंपली बोलना क्या है? वैसे तो आंसर आपको दिख गया. अब देखो समझो इसको कैसे समझना है. पहले तो यहाँ पे क्या बोला है कि द वॉल्यूम ऑफ अ फूड, जो हम लोग जो कंज्यूम करते हैं ना वो जो होता है वो थोड़ा सा ना कैसे होता है कंपेयरिंग विद द पिल्स, कंपेयरिंग विद द पिल्स थोड़ा सा इम्पॉसिबल होता है. क्योंकि समझो अगर जनरली कोई जिम जाता होगा तो उसको पता होगा कि जो विटामिन की पिल्स मिलती है ना उसमें क्वांटिटी ऑफ विटामिन जो होता है वो जेनेरिक फूड से ज्यादा होता है. इज दैट यस और नो? टेल मी गाइस. जो भी जिम में जाते हैं, जो जिम के बारे में जानते हैं या फिर न्यूट्रिशन कंज्यूम करते हैं उनको पता होगा कि जो हम पिल्स लेते हैं या फिर जो विटामिन या प्रोटीन्स के जो बॉक्स मिलते हैं उसके अंदर जो काइंड ऑफ प्रोटीन होता है वो ज्यादा क्वांटिटी में होता है देन जेनेरिक फूड. जैसे कि मैं अगर एक एग की बात करूं तो एक एग जो होगा वो आपको कुछ सॉर्ट ऑफ 6 ग्राम ऑफ प्रोटीन देगा. बट इन दैट केस अगर उतने ही पंच ऑफ उतनी ही पाउडर में अगर यूज कर लूं वेट प्रोटीन की और मैं वो कंज्यूम कर लूं सो आई विल गेट 25 ग्राम ऑफ प्रोटीन. सो वो बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ कैलकुलेशंस बन जाते हैं. एंड इन दैट केस हम जो है वो ये बोल सकते हैं कि ये विटामिन पिल्स जो है ना ये ज्यादा यूजफुल है देन ऑर्गेनिक फूड. सो मुझे बोलो किस क्या ये ज्यादा स्ट्रांग है कि ये ज्यादा स्ट्रांग है फॉर द पिल्स? फॉर दी पिल्स क्या स्ट्रांग होगा? क्या ये बात करना स्ट्रांग है कि न्यूट्रिशनिस्ट, अभी न्यूट्रिशनिस्ट उसको प्रिस्क्राइब करते हैं इसके लिए वो पिल्स जो है वो ज्यादा इफेक्टिव होगी? क्या नहीं हो सकती. बिकॉज द रीजन बिहाइंड इट कि न्यूट्रिशनिस्ट तो क्या बोलते हैं कोर्सेज ऑफ हेल्दी ईटिंग ना, बट ये हेल्दी ईटिंग क्या होती है वो थोड़ी ना स्पेसिफाई किया है. और वो कर भी दे तो भी हम इसको ज्यादा स्ट्रांग नहीं बोल सकते. क्यों? क्योंकि यहां पे तो स्पेसिफिक रीजन ही बता दिया एंड दैट स्पेसिफिक रीजन इज अ कंप्लीटली practically perfect with the given argument and that's weakening the given argument and that's the answer and this gets eliminated. I hope I made you clear about the particular question and answer. Is that yes or no? Okay, good one. So moving to the next question. गुड गाइज एंड दैट इज गुड थिंग कि आपका भी जो रिस्पॉन्स है आप जो आंसर्स कर रहे हो दैट इज ऑल्सो करेक्ट. मोस्ट ऑफ द पीपल आर गिविंग राइट आंसर्स. हाँ समवेयर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है. अब कुछ लोगों ने यहाँ पे बी आंसर दिया था. द रीजन बिहाइंड दैट उन्होंने बाद में जो डी कंसिडर ही नहीं किया, उन्होंने बी को रीड करने के बाद जो है सी एंड डी को ज्यादा रिलेवेंट समझा ही नहीं एंड इन दैट केस उन्होंने जो है बी को कंसिडर करके आंसर दे दिया. वो नहीं होना चाहिए. आपको क्या करना है जब भी एक ऑप्शन आपको लगता है कि ये सही हो सकता है कम टू द नेक्स्ट ऑप्शन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या ये उससे भी स्ट्रांग है
क्या ये उससे भी अच्छा है? क्या इसको स्पेसिफिकली हम यूज कर सकते हैं? यहाँ पे ऐसा होगा ना कि अगर आपको गुड मिलता है तो आप बेटर की तरफ जाओ, और बेटर मिलता है तो बेस्ट की तरफ भागो, ये करना होता है। तब आप एक सही तरीके से एक आर्ग्यूमेंट को फाइंड आउट कर पाओगे, जो कि वीक करेगी या फिर स्ट्रांग बना देगी आर्ग्यूमेंट को। ओके, चलो मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। ट्राई हियर। हियर ऑल्सो यू विल टेक अ 2 minutes, ठीक है, 2 minutes एंड 30 seconds। चलो, ट्राई टू सॉल्व दिस। ओके गाइज, मैं आपको एक हिंट दूंगा यहाँ पर। बहुत लोग जो यहाँ पे गलत आंसर कर रहे हैं उनको मैं एक हिंट देता हूँ। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कि आपको जो है, आपको यहाँ पर एक चीज नोटिस करनी होगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर रहे हैं कि हम ट्राई कर रहे हैं कि आंसर को अपनी ओर से समझने के लिए। बट ट्राई करो थोड़ा सा कि इंफॉर्मेशन में कोई ऐसी चीज है क्या जो इट इज नॉट रिलेटेड टू द गिवन इंफॉर्मेशन, जो कि स्पेसिफिक नहीं हो सकती, जिसको कि हम लोग डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। वो एक अनसर्टन थिंग है। आप जो आंसर कर रहे हो उसमें एक अनसर्टन पॉइंट है जो आपको भी नहीं पता, एंड रियलिस्टिकली हम उसको फाइंड भी नहीं कर पाएंगे अगर वो गिवन इंफॉर्मेशन में है ही नहीं। वॉट एवर द योर कंसिडरिंग ना, उन ऑप्शंस को आप थोड़ा सा ऐसा समझो कि वहां पर आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो थोड़ी सी अनसर्टन है, आपको ही नहीं पता कि ये है कहाँ। ये किस किस पॉइंट से हम लोग ये बता पाएंगे, कैसे हम लोग ये एक्सप्लेन कर पाएंगे, वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। कोई भी पॉइंट सेलेक्ट करते वक्त वो पॉइंट सेलेक्ट करो जो कि आप डेफिनेटली बोल सको, आप उसका एक्सप्लेनेशन दे सको, दैट शुड बी ऑन अ कंस्ट्रक्टिव एविडेंस, बात कर सको।
तभी वो सही आर्ग्यूमेंट होगा एंड तभी वो आर्ग्यूमेंट को वीक भी कर सकता है। अदरवाइज वो वीक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बिकॉज दैट इज ओनली द अनसर्टेन इंफॉर्मेशन यू हैव एंड यू आर टॉकिंग अबाउट दैट इंफॉर्मेशन, सो हाउ इट गोना वीक? वो खुद ही एक वीक आर्ग्यूमेंट है जो सामने वाले स्टेटमेंट्स को क्या वीक करेगी? इट्स नॉट पॉसिबल। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। चलो देखो यहाँ पे समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, मुझे क्या बोलना है, थोड़ा सा मैं समझाता हूं अभी। यहाँ पे ना इन्फॉर्मेशन किस बारे में है, तो रेडियो एक्टिव मटेरियल के बारे में। मैं ऑलवेज रीड नहीं करूंगा, मुझे तो एक्चुअली पता है कि मटेरियल क्या दिया है, क्या पैराग्राफ है, मैं जानता हूं, तो इसीलिए मैं डायरेक्टली समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो यहाँ पर नेचुरली जो डिपॉजिट होता है, नेचुरली जो रेडियो एक्टिव मटीरियल जो अर्थ में से मिलते हैं ना, अर्थ की क्रस्ट में से मिलते हैं, मतलब जो निकलते हैं, नेचुरल प्रोडक्शन होता है जिस रेडियो एक्टिव मटेरियल का, वो जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है वो थोड़ा सा ना, मतलब उसका जो वेस्ट निकलता है वो डेंजरस वेस्ट होता है, बहुत ज्यादा डेंजरस होता है, बिकॉज इट्स अ रेडियो एक्टिव डेंजरस वेस्ट ना, इट्स अ रेडियो एक्टिव डेंजरस वेस्ट। नाउ व्हाट हैपेंस इज इन दैट केस, जब रेडियो एक्टिव डेंजरस वेस्ट निकलता है, सो इट इज व्हाट हैपेंस इज कि इनको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इनको यूज करते हैं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में। ठीक है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में यूज किया जाता है या फिर समवेयर न्यूक्लियरिस्टिक वेपन बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है। बट इन दैट केस ये जो है ना, ये जो वेस्ट होता है, ये वेस्ट बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करता, मतलब रॉन्ग इफेक्ट इसके आते नहीं है, दैट मींस इल इफेक्ट, कोई भी इल इफेक्ट इसका मिलता नहीं, दैट्स द थिंग, have been traced to this natural occurring deposit। इसने बोल दिया कि उसके कोई नेचुरली कुछ ऐसे डिफेक्ट नहीं मिलते जो कि रॉन्ग या नेगेटिव इफेक्ट हो। Since engineers have developed a way to store a manufactured nuclear waste as deeply within a earth crust as the recently found natural radioactive deposit, the safe deposit disposal of the nuclear waste can now be initiated। मतलब यहाँ पे ये बोलना है कि अभी जिस तरीके से टेक्नोलॉजी मिली हुई है जिससे कि हम लोग ये जो वेस्ट है ये सेफली डिस्पोजल कर पाए, डिस्पोज करना मतलब सेफली इसको खत्म कर दे जिससे कि ये दूसरों को हार्म ना करे, ये करना होता है। सो वी कैन नाउ व्हाट हैपेंस इज, अब हम क्या कर सकते हैं कि वो जो रेडियो एक्टिव डिपॉजिट जो हमें मिल रहा है नेचुरली, उसको हम लोग सेफली स्टोर भी कर सकते हैं और उस वेस्ट को डिस्पोज भी कर सकते हैं, ये इसने बता दिया। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, विच स्टेटमेंट्स वीकन्स द आर्ग्यूमेंट, ये बताया गया। बट इन दी स्टेटमेंट्स, अगर आप स्टेटमेंट्स को थोड़ा सा अच्छे से रीड करोगे ना तो आपको पता चलेगा, टोटल अमाउंट ऑफ अ डेंजरस वेस्ट प्रोड्यूस्ड एनुअली, स्पेसिफिक बात, हैज बीन डिक्लाइनिंग इन द रिसेंट ईयर। ये कहां से पता चलता है गाइस? क्या इसके बारे में कहीं से भी आपको ये नॉलेज हो सकता है कि ये डिक्लाइन हो रहा है इन द रिसेंट ईयर? नो, दैट्स नॉट अ परफेक्ट थिंग। यहां पे कहां है, ये अनसर्टन थिंग है, इसको निकाल दो, सीधी बात। ऑप्शन बी, it cannot currently be determined what a geological condition, that talks about कि अभी हम लोग ये डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे कि अभी फिलहाल जियोलॉजिकल कंडीशंस क्या है, आर अंडर विच आर अंडर विच the natural occurring are under which the natural occurring radioactive deposits had apparently been safely contained। मतलब यहां पे ये बोलना है कि हम लोग फिलहाल के लिए ये डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे कि ऐसी कौन सी जियोलॉजिकल कंडीशंस है अंडर विच, मतलब इस जियोलॉजिकल कंडीशन में जो नेचुरली रेडियो एक्टिव डिपॉजिट हमें मिल रहा है वो सेफली कंटेन्ड किया जा सकता है, ये बोलना चाहता है। मतलब यहां पे इन्होंने क्या बोला कि अभी हम लोग इसको सेफली डिपॉजिट कर सकते हैं, वी कैन इनिशिएट सेफ डिस्पोजल एंड सेफ डिपॉजिट ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल, ये इन्होंने बोल दिया। अब ये जो है ये पॉजिटिव वे में बात कर रहा है अबाउट दी डिस्पोजल एंड दी स्टोरेज, बट ये स्टेटमेंट जो है वो एग्जैक्टली अपोजिट बात कर रहा है, एंड दैट्स विद द कंस्ट्रक्टिव स्टेटमेंट, क्योंकि यहां पर इन्होंने सीधे सीधे बोल दिया कि नॉट करंटली डिटरमाइंड, मतलब ये खुद भी इसको पता है कि ये डिटरमाइंड नहीं किया जा सकता कि व्हाट इज एग्जैक्टली द जियोलॉजिकल कंडीशन वेयर वी कैन स्टोर दैट जियोलॉजी दैट रेडियोएक्टिव मटेरियल एंड वेयर वी कैन डिस्पोज दैट वेस्ट ऑफ दी दैट रेडियोएक्टिव मटेरियल। हम ये यहां पर तो हम ये डिटरमाइन कर ही नहीं सकते। So that means this is a kind of information which can weaken the argument here, because this is a positive nature and this gives exactly opposite nature of argument here. Now next option C को consider करके देख लेते हैं एक बार। It is now economically feasible। इकोनॉमिकली फिजिबल मतलब यहां पे बात हो रही है कंट्री के फाइनेंस की,
कि कंट्री के पास अभी इतना पैसा है, या फिर गवर्नमेंट के पास या फिर किसी कंपनी के पास इतना पैसा है कि अब वो जो है फिजिकली, मतलब एक तरीके से ड्रिल कर ले, अर्थ को ड्रिल कर ले, वहां पे एक ऐसा स्टोर बना ले, जगह बना ले कि जिसके अंदर हम वो जो है रेडियो एक्टिव मटेरियल स्टोर कर सकते हैं या फिर उसको डिस्पोज कर सकते हैं। कोई ऐसे सिस्टम बना दी हम लोगों ने, बट फॉर दैट वी आर इकोनॉमिकली फिजिबल, दैट मींस वी आर फाइनेंशियली स्टेबल, दैट मींस वी आर फाइनेंशियली दैट मच कैपेबल। बट यहाँ पे फाइनेंशियल कैपेबिलिटी की बात ही नहीं आती। सो व्हाट इज द रिलेशन इन बिटवीन दिस? तो ये तो वीकन करने की बात ही नहीं आएगी। दिस इज कंप्लीटली अनकनेक्टेड, नॉट कनेक्टेड, राइट? नाउ कमिंग टू द डी ऑप्शंस, सी कंटिन्यूड प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट एट द करंट रेट। यहां पे बात की जा रही है करंट रेट की। सो गाइस टेल मी, ये भी तो अनसर्टन हुआ ना, हाउ वी कैन डिटरमाइन दैट की करंट रेट। अब कौन सा करंट रेट भाई, ये तो बात ही नहीं हो रही है। देयर इज नथिंग लाइक, ऐसा कुछ डिस्कशन ही नहीं हुआ, ऐसी कोई बात ही हमें पता नहीं है। हाउ वी कैन से दैट कि करंट रेट। बहुत लोगों ने डी आंसर दिया, बट गाइस डू अंडरस्टैंड, डी आंसर करने के लिए क्या आपको पता है कि करंट रेट क्या है? क्या आप जानते हो? क्या आपके पास इसका डेटा है? इवन अगर मैं रियलिस्टिकली भी बात करूं तो गाइस आज भी किसी भी कंट्री में या फिर पूरे वर्ल्ड के किसी भी नेशन के पास रेडियो एक्टिव मटेरियल का डेटा करेक्टली अवेलेबल ही नहीं होगा। करंट रेट उसको कहां से पता चलेगा? दूसरी बात, विल इवेंचुअली आउटस्ट्रिप आउटस्ट्रिप अवेलेबल कैपेसिटी फॉर द सेफ स्टोरेज। मतलब इसको यहां पे ये बोलना है कि रेडियो एक्टिव मटेरियल इतना है कि हमारे पास उतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम उसको स्टोर कर पाए। इन शॉर्ट, दे आर गोइंग टू से दैट कि यहाँ पे रेडियो एक्टिव मटेरियल का जो स्टोरेज है ना वो बढ़ता जाएगा, जो मटेरियल जो कंपोनेंट जो है वो बढ़ते जाएंगे। ये बोलना है। हाउ वी कैन डिटरमाइन दैट, कैसे हम लोग इसको डिटरमाइन कर पाए? नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। सो दैट्स द रीजन ऑप्शन डी वुड्स गेट एलिमिनेट। और मैं यही बोल रहा था कि इसको कंसीडर करो, बट यू आर नॉट कंसीडरिंग दैट। आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। आपने क्या किया, सिर्फ यहां पे ना एक चीज को ध्यान दिया कि यहाँ पे जियोलॉजिकल कंडीशंस की बात करी जा रही है, यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं हो रही है, एंड डायरेक्टली आपने क्या किया कि कैसे भी करके स्टोरेज को मैं बढ़ा सकता हूँ, स्टोरेज को मैं फॉलो करूंगा, मैं स्टोरेज को सपोर्ट करूंगा। दैट्स व्हाट यू आर थिंकिंग, राइट? ऑप्शन डी जिन्होंने आंसर किया है कि वो लोग यही सोच रहे थे कि यह आप यहाँ पे किसी भी तरीके से मुझे स्टोरेज को बढ़ाना है, स्टोरेज को सपोर्ट करवाना है। इज दैट यू आर ट्राइंग टू डू? यस सर। बट देखो यहां पे तो वही तो बात कर रहे हैं ना, तो हम तो फिर उसको स्ट्रांग किए जा रहे हैं, हम लोग इसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम इसको कंसिडर करते हैं दैट मींस वी आर स्ट्रेंथनिंग द इंफॉर्मेशन। सो हाउ वी कैन से दैट? एंड अगेन अगर ये वीकन भी करता है तो भी ये अनसर्टन है, कैसे हम बात कर सकते हैं इसके बारे में? दैट इज नॉट पॉसिबल। तो सिंपली ऑप्शन बी वुड बी योर करेक्ट आंसर। इज इट? हैव यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट, कैसे आपको इसको डील करना है? See, there are the many more approach to understand and many more approach to find out the right answers, because this is a critical reasoning according to your understanding, according to your maturity, according to your materialistic thinking, realistic thinking. You have to answer here. थोड़ा सा आपको मेच्योरिटी में लाना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, then you would be able to answer correctly. Okay, that's the important thing here. Now coming to the next point, now the statements and assumptions. Now coming to the statements and assumptions, पहली बात तो ये है statements and assumptions होता क्या है। सिंपली समझाऊं, ज्यादा इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है, सिंपली ऊपर से समझो कि स्टेटमेंट्स एंड assumptions को कैसे समझते हैं। अगर मैंने कोई बात की, मैंने बोला कि अद्वैत इज अ स्मार्ट बॉय, ये मैंने बोल दिया, ठीक है, या फिर अभिनव इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन, या फिर स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट इन क्लासरूम, ऐसे मैंने बोल दिया। नाउ बिहाइंड दिस जो स्टेटमेंट मैंने अभी दो बोले, उसके पीछे कुछ ना कुछ मैंने अज्यूम किया, कुछ ना कुछ मैंने थॉट प्रोसेस किया। दैट थॉट प्रोसेस कॉल्ड एज एन अजम्पशन, उसको हम लोग बोलेंगे अजम्पशन। दैट मीन्स वॉट, कि हमने एक पहले तो कुछ अजम्पशन लिया, एंड ऑन दैट अजम्पशन बेस्ड हमने एक स्टेटमेंट दी। दिस इज द स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, ये होता है स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। नाउ इन द क्वेश्चन व्हाट हैपेंस इज, आपको एक स्टेटमेंट दिया होगा, जैसे कि ऊपर यहाँ पे एक स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है। अब वो स्टेटमेंट क्यों बोला गया, व्हाई दिस इज अ स्टेटमेंट, उसके रिगार्डिंग क्या अजम्पशन हो सकता है, उसके पहले उन्होंने क्या अजम्पशन किया होगा, वो उन्होंने नीचे 5 ऑप्शंस में दिए हुए। आपको क्या करना है, फ्रॉम दैट 5 ऑप्शंस यू हैव टू कंसिडर दैट पॉइंट ऑफ स्टेटमेंट कि जिस वजह से हम ये अज्यूम करें और ये स्टेटमेंट निकल के आए। मतलब इन शॉर्ट, ऊपर की स्टेटमेंट्स के लिए नीचे हमें रीजन फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द रीजन कि वी आर सेइंग दैट द स्कूल बोर्ड हैज डिटरमाइंड दैट इट इज नेसेसरी टू रिड्यूस द नंबर ऑफ टीचर्स ऑन द स्टाफ। ये हम क्यों बोल रहे हैं, ये हमें नीचे फाइंड आउट करना है। सिंपल। हैव यू अंडरस्टूड दिस? इन शॉर्ट, आपको इंफॉर्मेशन का रीजन फाइंड आउट करना है, व्हाई वी आर सेइंग दिस, व्हाई वी आर सेइंग दिस, दैट वुड बी योर मोटो टू फाइंड आउट द स्टेटमेंट एंड assumptions आंसर। स्टार्ट। यहाँ पे चलो, यहाँ पे मैं पहले क्वेश्चन में आपको 3 मिनट्स टू देता हूं अंडरस्टैंड करने के लिए एंड आंसर करने के लिए। ओके, ट्राई टू आंसर दिस, टेक अ 3 मिनट्स एंड ट्राई टू आंसर दिस।
हैप्पी टू सी दैट कि बहुत लोग राइट आंसर्स कर रहे हैं, दैट इज अ वेरी गुड थिंग गाइस, परफेक्ट, वेल डन, परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग। रोशन यू हैव टू रीचेक, जस्ट रीचेक योर आंसर, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो एंड देन ट्राई टू आंसर इट। अनसर्टन बातें मत करो, आप अनसर्टनिटी फाइंड आउट करने की कोशिश मत करो, आप सिर्फ क्या करो, जो सर्टनली हम बात कर सकते हैं, प्रैक्टिकली जो सही हो सकता है उसी को कंसिडर करो, एंड दैट वुड बी द परफेक्ट आइडिया। चलो, वेल डन। बहुत लोगों ने राइट आंसर किया, बहुतों ने रॉन्ग भी किया है, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेजोरिटी आंसर्ड करेक्टली, मेजोरिटी मेजोरिटी गाइस आंसर्ड करेक्टली, वेल डन, आई एम हैप्पी टू सी दिस। चलो, अब मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ गाइस, किसी का आंसर करना बाकी है, एनीवन वांट्स टू आंसर नाउ? अभी भी आंसर करना है तो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो मैं एक आंसर करो, दो दो आंसर कौन करता है? मतलब ये तो केबीसी खेलने जैसा हो गया, 50-50। ओके, तुषार, ओके। चलो, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं तो यहाँ पे थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, हमें अज्यूम करना है, इंफॉर्मेशन क्या दिया है कि स्कूल बोर्ड हैज डिटरमाइंड दैट इट इज नेसेसरी टू रिड्यूस द नंबर ऑफ टीचर्स, मतलब स्कूल बोर्ड ने डिसाइड किया कि नंबर ऑफ टीचर्स को है वो हम लोग क्या करेंगे, रिड्यूस कर लेंगे, ठीक है, तो रिडक्शन की बात हो रही है। रेदर देन डिसाइडिंग विच टीचर्स विल बी, देखो, rather than deciding which teachers will be laid off on the basis of seniority, the school board plans to lay off the least effective teachers first। लीस्ट इफेक्टिव टीचर मतलब जिसकी वर्किंग स्टाइल या फिर जिसका अंडरस्टैंडिंग, जिसकी सिखाने का टीचिंग का स्टाइल, टीचिंग की अंडरस्टैंडिंग, टीचिंग का नॉलेज, एवरीथिंग एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द इफेक्टिवनेस। तो इफेक्टिवनेस जिसकी अच्छी है उसको कंसिडर करना पहले तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और जिसकी नहीं है उसको तो निकाल दो, सिंपली उसको लेड ऑफ कर दो। मतलब क्या, ऑन द बेसिस ऑफ सीनियोरिटी आप किसी को लेड ऑफ नहीं कर सकते, जस्ट इंपॉर्टेंट इज इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस देखो एंड देन उनको लेड ऑफ कर लो। तो जिसका हाई इफेक्टिवनेस है वो रहेगा, जिसका लो इफेक्टिवनेस है वो निकल जाएगा। दिस वुड बी द क्राइटेरिया स्कूल्स अज्यूम, स्कूल बोर्ड अज्यूम्स, मतलब इन्होंने ये फाइंड आउट कर लिया। अब ये क्राइटेरिया कैसे आया और क्यों आया, क्या इसके पहले उन्होंने सोचा होगा? चलो, अब हम देखते हैं कि हम क्या सोच सकते हैं इसके पहले। पहला ऑप्शन ए बोलता है, क्या हम ये सोच सकते हैं, देयर इज अ वे ऑफ डिटरमाइनिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ अ टीचर? हाँ, दिस कुड बी द वन वे ऑफ डिटरमाइनिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ अ टीचर, बिकॉज जैसे ही हम लोग यहाँ पे टीचर्स को लेड ऑफ करना शुरू कर देंगे इफेक्टिवनेस के बेस पे, नाउ वी आर गोना फाइंड आउट दैट, वी आर गोना फाइंड दैट, हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम लोग फीडबैक लेना शुरू कर देंगे कि कौन इफेक्टिव है, क्या क्या कर रहा है। सो नाउ हियर वी आर व्हाट डूइंग, कि हम लोग इफेक्टिवनेस के पीछे पड़ रहे हैं, अब हम इफेक्टिव टीचर्स को रखने की कोशिश कर रहे हैं और बाकी जो इनफेक्टिव है उन लोग को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर दैट प्रोसेस वी हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन टीचर कितना इफेक्टिव है, पहले तो वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। नाउ, अभी ये कंसिडर किया जा सकता है फिलहाल के लिए। कमिंग टू द बी, व्हाट वन इंडिविजुअल डिफाइंस एज इफेक्टिव, इंडिविजुअल की बात की जा रही है। इफेक्टिव टीचिंग विल नॉट बी डिफाइंड एज एन इफेक्टिव टीचिंग बाय द अनदर इंडिविजुअल। बट यहाँ पे ऐसा कोई बात नहीं होता, यहाँ पे तो बोर्ड डिसाइड करने वाला है ना, ये इंडिविजुअल की कहां बात आती है, पहली चीज। मतलब इनको ये बोलना है कि एक इंडिविजुअल जिस चीज को इफेक्टिव टीचिंग बोल सकता है, उसी जगह पर दूसरा इंडिविजुअल उसको इफेक्टिव टीचिंग नहीं बोलेगा। बट दिस इज अ काइंड ऑफ ओपिनियंस व्हिच इंडिविजुअल्स हैज, और इसका तो यहाँ पे इस इंफॉर्मेशन से कोई रिलेशन नहीं है। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट कि भाई इन लोगों ने इस तरीके की लेड ऑफ टेक्निक क्यों फाइंड आउट कर ली, तो ये हमें अज्यूम करना है। तो इस ये अजम्पशन का कोई बात ही नहीं बनता, ये हम अज्यूम क्यों करेंगे, ये रीजन क्यों बन सकता है हमें इस टेक्निक को अडॉप्ट करने के लिए, तो ये तो गलत हो गया।
ऑप्शन सी सेज दोज विद द मोस्ट एक्सपीरियंस टीचिंग आर द बेस्ट टीचर। अब यहाँ पे दोज विद द मोस्ट एक्सपीरियंस बोल दिया, मतलब ये हो गया सीनियोरिटी बेस्ड। अब सीनियोरिटी बेस्ड तो अज्यूमशन है ही नहीं, कि हमें बात करनी है ये बात वाली कि लेड ऑफ टेक्निक यहाँ पे लीस्ट इफेक्टिव टीचर्स के लिए क्यों यूज की जा रही है, तो ये सिंपली ये भी एलिमिनेट होता है। Now, those teachers who are paid the most generally, the most qualified. अब ये क्वालिफिकेशन की बात की जा रही है, क्वालिफिकेशन इज नॉट itself इज द इफेक्टिवनेस प्रूफ, मतलब इफेक्टिवनेस का ये कंस्ट्रक्टिव प्रूफ नहीं होता क्वालिफिकेशन, या फिर अगर वो जनरली हाई पेड भी है तो भी जरूरी नहीं है कि वो इफेक्टिव हो, तो ये भी यहां से निकल जाता है। ऑप्शन ई सेज some teachers will be more effective working with some students than with other students, doesn't matter, बिकॉज यहाँ पे स्टूडेंट्स कितने उनको लाइक स्टूडेंट से कितना उनका कनेक्शन है, स्टूडेंट्स कितने अच्छे से उनके साथ रिस्पॉन्स करते हैं, ये मैटर नहीं करता, बिकॉज स्टूडेंट्स यूज टू वैरी, मतलब उनका ओपिनियन वैरी होते रहता है अकॉर्डिंग टू देयर कंफर्टनेस, तो स्टूडेंट्स को यहाँ कंसिडर करना इज रॉन्ग थिंग, सिंपल। यहाँ पे ये भी चला जाएगा, बचा क्या, ऑप्शन ए, एंड दैट वुड बी योर करेक्ट ऑप्शन। हैव यू अंडरस्टूड दिस? एलिमिनेशन टेक्निक में मुझे कहां कहां क्या क्या मैंने देखो मैंने हाईलाइट करके रखा है कि कौन से पॉइंट्स को आपको समझना है, तो दैट मींस व्हाट कि आप ऑप्शंस में ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करना और उनके बेस पे थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करना, दैट वुड बी दी हेल्पफुल टू फाइंड आउट द राइट आंसर्स। तो इट इज लाइक कि थोड़ा सा कीवर्ड्स को फाइंड आउट करना, इन कीवर्ड्स को मैच करके अंडरस्टैंडिंग लेना। क्लियर? थोड़ा सा अजम्पशन में थोड़ा सा आपको बैकवर्ड जाना होता है, अज्यूम करना होता है, और अज्यूम करने से पहले आपको समझना होता है कि मैं ये अज्यूम क्यों कर रहा हूं, एंड देन यू हैव टू आंसर द अजम्पशन, सिंपल। चलो नेक्स्ट, हियर some these are the some easy questions, ये moderate level के questions ही है, ज्यादा difficult नहीं है, but sir experienced faculty will be more effective in the teaching now, yeah that is correct, but experienced faculty again देखो ना, हम लोगों ने बात क्या की, ऑप्शन अभी देखो क्वेश्चन किस तरीके से बनाया गया है वो भी समझना इंपॉर्टेंट है। क्या बात हो रही है, स्कूल बोर्ड प्लान अज्यूम्स, स्कूल बोर्ड प्लान, क्या प्लान था स्कूल बोर्ड प्लान, टू ले ऑफ द लीस्ट इफेक्टिव टीचर, टू ले ऑफ द लिस्ट इफेक्टिव टीचर। क्या आप ये अज्यूम करोगे कि मैं लिस्ट इफेक्टिव टीचर को लेड ऑफ कर रहा हूं क्योंकि क्योंकि जो मोस्ट पेड मोस्ट एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं वो बेस्ट टीचर्स होते हैं, ये बोलना तो गलत है, क्योंकि उसके पहले ही हम लोग अगर स्कूल बोर्ड में है तो उसके पहले ही हम लोग ने क्या बोला, वी आर नॉट गोना कंसिडर द सीनियोरिटी, एंड यहां पर मोस्ट एक्सपीरियंस पर्सन ही सीनियर होते हैं, तो अगर सीनियोरिटी कंसिडर नहीं करनी है, सो हाउ वी कैन कंसिडर दैट मोस्ट एक्सपीरियंस पर्सन, इज दैट पॉसिबल? पहली बात, अगर आप मोस्ट एक्सपीरियंस पर्सन बोलते हो तो वही तो सीनियर पर्सन होता है, बट वी आर प्लानिंग व्हाट कि लेड ऑफ दैट पर्सन हु इज नॉट इफेक्टिव। अब इफेक्टिव पर्सन ऐसा नहीं हो सकता कि इफेक्टिव पर्सन मोस्ट सीनियर पर्सन हो, ऐसा भी हो सकता है समवेयर कोई न्यू पर्सन आए तो वो भी इफेक्टिव होता है। सर अगर सीनियोरिटी की बात नहीं होती तो क्वेश्चन में तो प्रणंशु देखो पहले तो एक बात समझो, यहाँ पे इफ एंड देन के क्वेश्चंस को ना थोड़ा सा हमें साइड में रखना होगा, क्यों, क्योंकि देयर वुड बी अ मल्टीपल काइंड ऑफ आंसर्स, देयर वुड बी अ मल्टीपल काइंड ऑफ सिचुएशंस, इट डिपेंड्स ऑन द गिवन फैक्ट्स। अब यहाँ पे सीनियोरिटी की बात नहीं होती तो क्या होता, ये डिपेंड करता है गिवन इन्फॉर्मेशन पे, क्योंकि उसके पहले कुछ तो इन्फॉर्मेशन दी होती ना, तब हम बात कर सकते थे कि आंसर क्या होना चाहिए, बिकॉज यू आर गिविंग द हाफ इंफॉर्मेशन, उसके पीछे कुछ बैकग्राउंड भी होगा, उस बैकग्राउंड को भी समझना होगा, एंड देन वी हैव टू आंसर, एंड देन ओनली इट इज पॉसिबल कि इफ एंड देन की बात हम कर पाए। क्लियर? सिचुएशन शुड बी कंप्लीट बिकॉज दिस इज अ क्रिटिकल रीजनिंग, यहाँ पे हर फैक्ट इंपॉर्टेंट होता है, एक छोटा सा वर्ड भी यहाँ पे आंसर को चेंज कर सकता है, एंड दैट्स द रीजन मैं ये इफ एंड देन के क्वेश्चंस को यहाँ पर कंसिडर करने की कोशिश नहीं करूंगा, अगर मैं ये करता हूं तो मैं खुद को ही कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा हूं अब। क्लियर? जितना इंफॉर्मेशन दिया है स्टिक टू दैट इंफॉर्मेशन एंड फाइंड आउट द आंसर्स, उसके बाहर जाके कुछ भी करोगे तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आएगी आपके आंसर को आपको समझने में, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज दिस इज अ क्रिटिकल रीजनिंग, हियर यू शुड बी प्रिसाइज, परफेक्ट एंड एनालिटिकल, दैट इज इंपॉर्टेंट, प्रिसाइजनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर। चलो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा जिन्होंने डाउट पूछा था, हैव यू क्लियर योर डाउट, समझ में आया? यश? ओके गुड वन, चलो यहां पे ट्राई करो। एक 3 मिनट्स है गाइस, मैं भी टाइम नहीं लिख रहा हूं बट आप ट्राई करो, चलो।
गाइस मोर क्रिटिकल आंसर क्वेश्चन, इज इट? थोड़ा सा क्रिटिकल है एंड थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है, फील हो रहा है ये चीज। कहीं ना कहीं यहाँ पे दो तीन फैक्टर्स है जिनको आपको समझना होगा। यहाँ पे एक ही जगह पर तीन चीजें आ चुकी है। पहली चीज, यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट भी है, उसी के साथ एक कंक्लूजन भी है इन दैट आर्ग्यूमेंट ओनली। एंड उसी कंक्लूजन को हम लोगों ने क्यों निकाला, व्हाई वी आर कंक्लूडिंग दैट, उसका हमें अजम्पशन बताना है। दैट कंक्लूजन वाला पार्ट, उसका जो अजम्पशन होगा ना, वो आपका आंसर होगा। मतलब यहां पे देखो क्या हुआ। पहले तो वो स्टेटमेंट में क्या बोलता है कि बैचलर्स डिग्री इज नेसेसरी फॉर अपॉइंटमेंट टू द एग्जीक्यूटिव बोर्ड, ठीक है। मतलब बैचलर डिग्री इज अपॉइंटेड, बैचलर डिग्री इज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट ही सेज फर्दर नो वन विद फेलोनी कन्विक्शन कैन बी अपॉइंटेड टू द बोर्ड। मतलब किसी का सपोर्ट लेके कोई नहीं आ सकता, कोई फेलोनी बोले, मतलब कोई बड़ा इंसान कुछ बोले और कुछ सीनियर्स बोले तो हम लोग उसको ऊपर नहीं लेंगे, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ डिग्री को इंपॉर्टेंस देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, thus मनु नाम का कोई पर्सन होगा, इंडिविजुअल होगा, an accountant with both bachelor's and a master's degree cannot be accepted for the position of executive administrator। मतलब यहां पे बोल दिया कि एक अकाउंटेंट, जो अकाउंटेंट है विद द बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री, एक अकाउंटेंट भी है, बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री भी है, कैन नॉट बी एक्सेप्टेड फॉर द पोजीशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटर। अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो यू वुड बी गेटिंग सम आइडिया, आपको एक आइडिया मिलेगा कि आपका जो आंसर है वो क्या होना चाहिए। देखो यहां पे पहले तो चीज ये होती है कि मनु ने क्या बोला है, मनु इज व्हाट, एन अकाउंटेंट, ये अकाउंटेंट है। और यहां पे किसके लिए अपॉइंटमेंट करनी है, एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटर। इन दोनों की क्राइटेरियाज अलग अलग होती है। फिर उसके बाद बोथ बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री है इसके पास, बट दैट डजंट मीन कि शी शुड अपॉइंट और ही शुड अपॉइंट फॉर द एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटर, सिंस ही हैज अ फेलोनी कन्विक्शन। सिंस ही हैज अ फेलोनी कन्विक्शन, मतलब उसके पास फेलोनी कन्विक्शन है, और उसकी वजह से वो अकाउंटेंट होने के बाद भी उसको एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन में ले दिया जाए, ये सही नहीं होगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, the argument's conclusion follows a logically if which one of the following is assumed। now do understand here guys, यहां पे ना देखो तो कैसे बनाया है argument's conclusion। ये कंक्लूजन जो आर्ग्यूमेंट में से निकला, मतलब पहली बात यहां से लेकर यहां तक, या फिर वी कैन से यहां तक एक आर्ग्यूमेंट फॉर्म हो रहा है, बट उसके बाद ये जो है ना, ये कंक्लूजन फॉर्म कर रहा है, ये कंक्लूजन पार्ट फॉर्म कर रहा है। एंड हमें क्या करना है, इस कंक्लूजन फॉर्म के लिए क्या अजम्पशन हो सकता है वो फाइंड आउट कर लेना है। अब पहली बात देखो, ये दोनों एक दूसरे से कंप्लीटली अपोजिट है, सो ये तो हमें पहले तो ध्यान रखना होगा ना। नेक्स्ट मूविंग टू द ऑप्शंस, देखो ऑप्शंस में कैसे बात हो रही है। एनीवन विद मास्टर्स डिग्री एंड विदाउट अ फेलोनी कन्विक्शन इज एलिजिबल। यहां पे सिर्फ मास्टर डिग्री की बात हो रही है और स्पेसिफिकली मास्टर डिग्री की बात हो रही है, और ये तो यहां पे बात नहीं हो रही है, दे आर ओनली टॉकिंग अबाउट बैचलर्स डिग्री। बैचलर्स डिग्री इज नेसेसरी, मास्टर डिग्री के बारे में परफेक्शन या फिर प्रिसाइजनेस नहीं है, इसको निकाल दो। कम टू द ऑप्शन बी, ओनली कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट टू द एग्जीक्यूटिव बोर्ड। देखो स्पेसिफिक मेंशन है यहां पर, और यहां पर कौन चाहिए, एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटर, कैन बी एक्सेप्टेड फॉर द पोजीशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटर। वैसे तो आंसर आ गया, बट ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, यहां पर ऑप्शन सी क्या बोलता है, अ बैचलर्स डिग्री इज नॉट नेसेसरी फॉर एक्सेप्टेंस फॉर द पोजीशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटर। कहां पर एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटर की एलिजिबिलिटी के बारे में बताया है, कहीं पर भी नहीं बताया। सो हाउ वी कैन अज्यूम दैट कि अ बैचलर डिग्री, और अगर ये होता भी तो ये फैक्ट होता, इसको हम लोग असम्पशन नहीं बोलेंगे, ये फैक्ट बन गया, एलिमिनेट। ऑप्शन डी देखो, इफ मनु डिड नॉट हैव अ फेलोनी कन्विक्शन ही वुड बी एक्सेप्टेड। ये कहां प्रूव हुआ है कि ये फेलोनी कन्विक्शन इसके पास है, ये भी प्रूव नहीं होता बाय फैक्चुअल, तो ये भी चला जाता है। ऑप्शन ई देखो, अ फेलोनी चार्ज ऑन व्हिच मनु वाज कन्विक्टेड इज रिलेवेंट टू द ड्यूटीज ऑफ पोजीशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव डिग्री। ये तो उल्टा बात कर रहा है, रिलीवेंट, ये तो आउट ऑफ द कंसेप्ट हो गया। सिंपली ऑप्शन बी वुड बी योर करेक्ट आंसर। Guys, have you understood? Most of the people have answered correctly, but still मैंने जानबूझ के इसको एक्सप्लेन किया बिकॉज बहुत लोगों ने गलत भी आंसर किया है, so they got understanding कि इसको कैसे सॉल्व करना है। Yes राम साहब बोलो, what happened? Any doubt? Understood. Okay, Abhinav, good. Manu had a felony conviction. Manu had a felony conviction, but sir, but he has a felony conviction. Okay, देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है cannot be accepted for the position of executive administrator since he has a felony conviction। okay, तो फिर
तो फिर मैंने दो कंडीशंस तो बोल दी ना, कि अगर ये फेलोनी कन्विक्शन है भी तो भी ये फैक्ट बन गया ना, ये अजम्पशन नहीं हो सकता। दिस इज अ फैक्चुअल थिंग यू आर सेइंग, राइट? ये अजम्पशन नहीं, अजम्पशन क्या होता है? अजम्पशन इज नॉट अ फैक्ट, अजम्पशन इज अ थॉट प्रोसेस विच यू अज्यूम बिफोर द गिविंग एनी कंक्लूजन। आप कंक्लूजन देने के पहले कुछ थॉट प्रोसेस रखते हो, दैट इज द परफेक्ट थिंग। इट्स ओनली सेइंग आई एम रामसा, यही तो बात मैं बोल रहा हूं कि इट्स मेंशन्ड इन द पैसेज एंड दैट बिकम्स व्हाट नाउ द फैक्ट। नाउ फैक्ट, हाउ फैक्ट वुड बी द अजम्पशन? फैक्ट कभी अजम्पशन नहीं हो सकता। फैक्ट तो फैक्चुअल होता है ना, रियल होता है। अजम्पशन इज बेस्ड ऑन सम प्रैक्टिकल थिंकिंग, that's a assumption, that's a just opinion which you form, right? Then eligibility criteria given in the statement is of no use. Yes, perfect. Eligibility criteria given in the statement is of no use, how you are saying, Simran? I don't understand. What do you want to say? That like क्या बोलना है आपको exactly? You're talking about which options? Criteria is a bachelor degree ना? Yes, criteria is a bachelor degree. और अगर हम लोग उस फैक्चुअल थिंग्स को अगर कंसिडर करने जाते हैं, तो फिर क्राइटेरिया, जो क्राइटेरिया है उसका तो कोई इंपॉर्टेंस बचेगा ही नहीं। बट दैट इज ऑफ नो यूज आंसर्स के हिसाब से, आंसर के हिसाब से दैट इज ऑफ नो यूज। व्हाई दैट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज वी आर सेइंग दैट ना, कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड में अपॉइंटमेंट चाहिए। यहाँ पे बात की क्या गई है, देखो ना, एग्जीक्यूटिव बोर्ड के लिए ही अपॉइंटमेंट चाहिए बैचलर डिग्री की। और यहाँ पे बात हो रही है, शी इज ऑफ अकाउंटेंट, शी इज अकाउंटेंट। और उसके साथ हम लोग ये नहीं बोल सकते कि वो अकाउंटेंट है तो उसको एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव में डाल दिया जाए। सिंपली वी आर अज्यूमिंग दैट कि ये अकाउंटेंट होने के बाद भी अगर ये एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटर में आ रही है, दैट मींस शी हैज अ फेलोनी कन्विक्शन। एंड फॉर दैट रीजन वी आर सेइंग दैट कि बाबा जो कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे ना फॉर दैट एग्जीक्यूटिव बोर्ड, वही वहां पे आएंगे, अदरवाइज कोई नहीं आ सकता। क्लियर? दैट्स द रीजन मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया ना, कि कंक्लूजन के बारे में हमें अजम्पशन करना है, ना कि आर्ग्यूमेंट्स के बारे में। अगर हम लोग ऊपर वाले पार्ट के लिए अगर कोई अजम्पशन करते हैं तो आर्ग्यूमेंट का अजम्पशन बन जाएगा, ना कि कंक्लूजन पार्ट का। बट हमें तो कंक्लूजन पार्ट का अजम्पशन देना था। दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग। मैंने पहले ही बोल दिया, तीन फैक्टर है यहाँ पर अलग अलग। सिंस ही हैज अ फेलोनी कन्विक्शंस, कौन से सेंस में है? लाइक फेलोनी कन्विक्शन होने के बाद भी ही गॉट अ रिजेक्ट, और बिकॉज ऑफ फेलोनी कन्विक्शन ही गॉट अ रिजेक्ट। That's the context of the sentence. समझा? वो बिकॉज ऑफ है, दैट इज नॉट बिकॉज सिंस बोल दिया ना। बिकॉज अभी सिंस बोलना मतलब क्या, दे गॉट टू नो दैट कि उसके पास कन्विक्शन है। अभी ये तो सीधी सीधी बात होती है ना, ये अजम्पशन सीधा सीधा हो गया ना, कि अभी देखो आप अकाउंटेंट हो और मेरे एग्जीक्यूटिव बोर्ड में घुस रहे हो, मतलब एग्जीक्यूटिव बोर्ड में आपको एंट्री मिल रही है, इसका मतलब कहीं ना कोई सीनियर है जो आपको सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि अकाउंटेंट का और एग्जीक्यूटिव बोर्ड का पूरा प्रोफाइल जो होता है अलग अलग होता है। आपको तो कुछ पता ही नहीं होता। आप अकाउंटेंट हो, आपको कैसे पता होगा एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चलता है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड में क्या चलता है? यू डोंट नो, यू जस्ट नो अबाउट द अकाउंटिंग पार्ट। देन हाउ you're getting appointment in the executive administrator point? नहीं मिल सकता। सो दैट्स अ क्लियर अजम्पशन हम लोग बना सकते हैं कि बाबा ये जो अगर यहाँ पे आ रहा है जो कि अकाउंटेंट है, जस्ट बिकॉज ही हैज अ बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री, सो ये तो एलिजिबल नहीं हो सकता ना। वी वांट दैट कि भाई जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड में आ रहा है वो एलिजिबल हो, वो परफेक्ट एलिजिबल पर्सन हो, तभी उसको हम लेंगे। क्लियर? दैट्स अ प्रिसाइज थिंकिंग ऑन प्रैक्टिकल बेसिस। अंडरस्टूड? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन।
ओके, दीक्षा सी। ओके, कोनेन। ओके ओके ओके, ठीक है। ओके, गुड वन। ओके, मोस्ट ऑफ द पीपल हैव आंसर्ड। परफेक्ट। ओके, परफेक्ट मतलब बहुत लोगों ने आंसर दिया है, दैट इज गुड थिंग। ट्राइड, वेरी गुड। व्हाट, सॉरी, जय यश क्या हुआ बोलो। आई डोंट अंडरस्टैंड। यश, ओके यश, अच्छा आंसर चेंज किया, ओके। सो चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, समझो। पहली बात तो आपको आंसर पहले दिखा देता हूँ क्या है। ऑप्शन डी इज द आंसर, ठीक है। नाउ देखो, यहाँ पे भी थोड़ा सा आप मिस कर रहे हो, कुछ पॉइंट्स को आप मिस कर रहे हो, उनको पहले समझो। अभिनव समझो, देखो नेचुरलिस्ट क्या बात करते हैं। नेचुरलिस्ट की थियरी के हिसाब से क्या बात हो रही है। द रिसेंट क्लेम्स, रिसेंटली क्लेम्स क्या हुआ है, क्लेम्स क्या हुए हैं। द टैस्मेनियन टाइगर इज नॉट एक्सटिंक्ट आर फॉल्स, मतलब टैस्मेनियन टाइगर जो है वो एक्सटिंक्ट नहीं हुए, ये फॉल्स है, ये क्लेम किया जा रहा है। मतलब वो एक्सटिंक्ट हुए हैं। इन शॉर्ट दे वांट टू से दैट कि वो एक्सटिंक्ट हुए हैं। द टैस्मेनियन टाइगर्स नेचुरल हैबिटेट्स was taken over by sheep farming decades ago, decades ago उनकी जो है, जो हैबिटेट है वो यूज कर ली, मतलब उनकी रहने की जगह, उनके जो रहने का जो एक एनवायरमेंट है उसको कवर कर लिया। रिजल्टिंग द एनिमल सिस्टम सिस्टमैटिक एलिमिनेशन फ्रॉम द एरिया, मतलब एक सिस्टमैटिक एलिमिनेशन हो गया उन टाइगर्स का, उन टाइगर्स को उस एरिया से निकाल दिया गया फॉर दैट शिप फार्मिंग। Since then, naturalists working in the region have discovered no hard evidence of its survival. मतलब यहाँ पे नेचुरलिस्ट वर्किंग जो है इन द रीजन हैव डिस्कवर्ड नो हार्ड एविडेंस ऑफ इट्स सर्वाइवल। यहाँ पे उनके सर्वाइवल का कोई भी एक एविडेंस नहीं मिल रहा है, सच एज कार्केसेस और ट्रैक्स। मतलब समझो कि उन्होंने जो सरवाइव किया होता तो वहां पर उनका कार्केसेस और ट्रैक्स मिलते। यहाँ पे कार्केसेस का मतलब क्या होता है, डेड बॉडीज, समवेयर उनकी कुछ डेड बॉडीज वगैरह कुछ ना कुछ तो मिला होता, कुछ तो वहां पे अवेलेबल होता। इन स्पाइट ऑफ एलिज्ड साइटिंग्स ऑफ एनिमल, द टैस्मेनियन टाइगर नो लॉन्गर एग्जिस्ट।
which one of the following is an assumption on which the naturalist argument depends। मतलब यहां पे ये बोला है कि वहां पर जो टाइगर्स है वो अवेलेबल नहीं है, दे आर नो लॉन्गर एग्जिस्ट, ये किस असम्पशन से बात की जा रही है। मतलब उनका ये क्लेम है कि टस्मेनियन टाइगर वहां पे एग्जिस्ट नहीं करते, कहीं ना कहीं उसके लिए शिप फार्मिंग रीजन है, ये तो बात हो रही है। ठीक है, ये आर्ग्यूमेंट है, ये गिवन आर्ग्यूमेंट है, इट्स एन अ बेस्ड आर्ग्यूमेंट, इट्स एन अ फैक्ट गिवन इन द इंफॉर्मेशन। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, हमें वो अजम्पशन फाइंड आउट करना है जिस बेस पे हम ये रियलिटी बता रहे हैं, जिस बेस पे हम लोग ये फैक्ट बता रहे हैं। ऑप्शन ए जिन्होंने आंसर किया था, डू अंडरस्टैंड दिस इज गिवन फैक्ट, मैंने पहले ही बोल दिया दिस इज गिवन फैक्ट, एलिमिनेट। ऑप्शन बी, some scavengers in Tasmania are capable of destroying Tasmanian tiger carcasses without a trace। यहाँ पे ये बात हो रही है कि कुछ स्कैवेंजर्स, ये स्कैवेंजर्स क्या होते हैं पता है, जो ये फ्लेश खाते हैं ना एनिमल्स का, जो एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स का फ्लेश खाते हैं, मरे हुए एनिमल्स का, तो उनको बोला जाता है स्कैवेंजर्स। अब ये स्कैवेंजर्स इतने कैपेबल है कि भाई जितने टाइगर्स, टेस्मेनियन टाइगर्स है ना, उनको ऐसे खा लिया, इतना मतलब सब कुछ एक्सटिंग्विश कर दिया, खत्म कर दिया, जिससे कि हमें वो स्ट्रेस अभी पता ही नहीं चल रहा है, हमें कुछ मिल ही नहीं रहा है, ऐसा बोल रहे हैं। तो ये तो कुछ और ही हो गया, मतलब स्कैवेंजर्स की बात की जा रही है और ये एग्जैगरेशन है, इसको एग्जैगरेटिव बोला जा सकता है, ये अजम्पशन ही एग्जैगरेशन है। तो यहाँ पे ये भी एलिमिनेट होता है, एग्जैगरेटिव स्टेटमेंट्स आर ऑलवेज लाइक अ रॉन्ग। ठीक है, एग्जैगरेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ स्कैवेंजर्स इसको एक्सटिंग कर ले ये तो पूरा डिफिकल्ट चीज है, मतलब इतने ट्रेसेस खत्म करना इट्स नॉट पॉसिबल थिंग। ठीक है, ऑप्शन सी, every naturalist working in a Tasmanian tiger's natural habitat has looked systematically for evidence of the टाइगर्स सर्वाइवल। मतलब यहाँ पे हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जितने भी नेचुरलिस्ट है, सारे नेचुरलिस्ट जो है वो जो वर्किंग करते हैं ना इन द टैस्मेनियन टाइगर्स नेचुरल हैबिटेट हैज लुक्ड सिस्टमैटिकली फॉर द एविडेंस ऑफ द टाइगर्स सर्वाइवल। मतलब उन्होंने बड़े सिस्टमैटिकली इन चीजों को देखा है, जितना भी सिस्टमैटिकली देख लो भाई, ये कैसे हो सकता है कि दे आर एक्सटिंक्ट, ये कहां से अजम्पशन किया, तो ये अजम्पशन हम करते हैं। सो वी कांट से दैट कि हम ये आर्ग्यूमेंट नहीं दे पाएंगे कि ये जो है ना कंप्लीटली मतलब फॉल्स है कि वो एक्सटिंक्ट नहीं हुए हैं, हम ये बोल रहे हैं कि वो एक्सटिंक्ट हुए हैं। तो अगर हम ये बोलते हैं कि वो एक्सटिंक्ट हुए हैं, तो उसके पीछे एक अजम्पशन ये होना चाहिए कि वो क्यों एक्सटिंक्ट हुए हैं। ठीक है, ये होना चाहिए। और यहाँ पे उन्होंने कितने अच्छे से रिसर्च किया, कितने अच्छे से उन्होंने एविडेंस फाइंड आउट किया, इसका क्या रिलेशन बनता है, देयर इज नो रिलेशन अबाउट इट। ऑप्शन सी गेट्स एलिमिनेट। ऑप्शन डी को देखो, द टस्मेनियन टाइगर did not move adapt to the different region in the response to the loss of habitat। मतलब यहाँ पे टस्मेनियन टाइगर्स जो है उन्होंने वहां से मूव नहीं किया, उसके बदले उन्होंने क्या कर लिया, अडॉप्ट टू द डिफरेंट रीजन इन रिस्पॉन्स टू द लॉस ऑफ हैबिटेट। उन्होंने वहां से मूव नहीं किया, बट वहीं पर जो डिफरेंट रीजन होते हैं उन रीजन्स में उन्होंने रहना सीख लिया। दे ट्राई टू, मतलब वहां पे रहने की कोशिश करना शुरू कर लिया। अब इसका एक इफेक्ट क्या हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ कि अब वो जो है मूव तो नहीं कर रहे, वहीं पे रह रहे। इसका मतलब शिफ्ट फार्मिंग के लिए उनको जानबूझकर वहां से निकालने की कोशिश की होगी, एंड इन दैट केस उनको मारा भी गया होगा, उनकी कहीं ना कहीं उनको किल किया गया होगा। एंड इन दैट केस जो है इनका जो ये क्लेम है कि दे आर क्लेमिंग दैट कि इनका एक्सटिंक्शन हुआ है, दैट बिकम्स अ ट्रू वन। बिकॉज ये असम्पशन करना कि वो जो है वहां से निकले नहीं होंगे, वहीं पे रहे होंगे, उन्होंने वो जो चेंज चेंज ऑफ हैबिटेट है उस हैबिटेट को एक्सेप्ट कर लिया, उनके साथ रहना सीख लिया। बट इन दैट केस शिफ्ट फार्मिंग के दौरान या फिर शिफ्ट फार्मिंग के लिए लोगों ने क्या किया, उनको मारना शुरू कर दिया। क्योंकि जब भी शिफ्ट फार्मिंग होती है एंड शिफ्ट तो उनके लिए अच्छा नेचुरल नेचुरल फूड है ना, टाइगर्स के लिए तो नेचुरल फूड है शिफ्ट। और अगर वो टाइगर जो है वो शिप्स को खाएंगे, शिप्स को अगर मारेंगे, तो वो तो नेचुरल फार्मिंग को, जो शिप फार्मिंग हो रही है उसको डैमेज करेगा, एंड इन दैट केस लोग को किल करेंगे। सो फॉर दैट रीजन ऑप्शन डी वुड बी योर करेक्ट आंसर। गाइस, हैव यू अंडरस्टूड दिस थिंग्स? ऑप्शन डी कैन आल्सो बी फैक्ट, राइट? नो, दिस वुड नॉट बी अ फैक्ट। ये फैक्ट कैसे हो सकता है? फैक्ट वो तभी होता है जब वो क्लेम के अंदर दिया हो, वो आर्ग्यूमेंट के अंदर दिया हो। पहली चीज, यहां पर डिफरेंट रीजन इन रिस्पॉन्स टू लॉस ऑफ हैबिटेट, मतलब ये अडॉप्ट करना, ये चीज तो बात ही नहीं की गई है। सो हाउ डू यू से दैट कि वो फैक्ट है? आर्ग्यूमेंट के अंदर वो दिया ही नहीं है, तो फैक्ट कैसे हो सकता है? सिंपल। क्लियर?
अंडरस्टूड गाइस, एवरीवन? आई वांट एवरीवनस फीडबैक, एवरीवनस अंडरस्टैंडिंग कि आपको कितना ओके गाइस, सो दैट्स अ गुड थिंग कि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही है। एंड ओके, सो गाइस व्हाट वी विल डू, यहाँ पे हम लोगों ने दो पार्ट कवर कर लिए अभी के लिए, लाइक आर्ग्यूमेंट एंड assumption. ओके, सो नाउ रिमेन्स विद द टू पार्ट्स, सी कंक्लूजन एंड वन ऑफ द पार्ट इज व्हाट, इन्फरेंस, राइट? तो यहाँ पे जो ये दो पार्ट हम लोग ने अभी कवर किए हैं, आपको क्या करनी है, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी है। यू हैव टू, आपको एक बार वापस से एक लेक्चर को देखना है एंड डू अंडरस्टैंड कि हम लोगों ने प्रोसेस कैसे किया, थोड़ा सा नोट डाउन करो कि प्रोसेस कैसे करना है, कैसे आपको आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। ऑन दैट बेसिस यू विल ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस। सो इन द नेक्स्ट सेशन वी विल बी डूइंग दैट कि inference and conclusion. Okay, so fact related options to question can never be answered. In the assumption, yes. In the assumption, yes, but based on the questions itself. It's about the questions किस तरीके से फॉर्म किया गया, that is also important. It's not a thumb rule कि ये होना चाहिए, ये नहीं हो सकता, ठीक है? It's not a thumb rule, it depends on the questions. Okay, yep. Okay.